پہ سب کام برابر ہے. آپ نیکی کر رہے ہیں تو بھی 1 لاکھ ہے, گناہ کر رہے ہیں تو بھی 1 لاکھ ہے, ارادہ کر رہے ہیں تو بھی 1 لاکھ ہے. تو یہاں پہ رہ کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, صبر کرنا ہے. یہاں کے آداب ضروری ہیں. یہاں کے کیا ضروری ہے؟ آداب ضروری ہے. کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. زبان سے کیسے پہنچاتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارا جو ذہن ہے وہ کسی اور طرف ہوتا ہے. جب ہم سے بار بار ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے تو پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے. موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہماری سانس چل رہی ہے تو ہمارے پاس توبہ کا بھی موقع ہے, عبادات کرنے کا بھی موقع ہے, لوگوں سے باتیں کرنے کا بھی موقع ہے. میرا نام محمد طارق ہے. جب میری سانس ختم ہوئی تو نام ختم, صرف کیا بچے گا کہ یہ میت ہے, اس کو جلدی دفناؤ. صدیق رضی اللہ عنہ کو برداشت نہ ہوا تو کہتے ہیں کیوں نہ ہم یہاں پہ ٹھہر جائیں, سواری کا انتظام کر لیں, پھر آگے چلتے ہیں. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہم یہاں پہ سواری کا انتظام نہیں. حج کے رکن ادا کریں. آمین ثم آمین. یہ دیکھیں جی, یہاں پہ آپ کو خیمے بھی دکھائی دیں گے. آگے آپ کو یہاں پہ تھوڑا خیمے بھی دکھائی دیں گے. آپ کو جو ہے خیمے دکھائی دیں گے. جی یہ خیمے لگے ہوئے ہیں, اسی طریقے کے خیمے ہوتے ہیں اور ان کے اندر حجاج کرام بیٹھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ خیمے لگے ہوئے ہیں, ان کے اندر حجاج کرام بیٹھتے ہیں اور حج کا جو ہے پورے دن جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے. اللہ پاک ہم سب کو بھی موقع عطا فرمائے اور ہم سب جو ہے حج بیت اللہ کے لیے یہاں دکھائی دے رہی ہے. یہ میدان عرفات کی باؤنڈری ہے. یہ ہم یہاں سے سیدھا جو ہے مسجد نمرہ کے قریب سے ہوتے ہوئے جائیں گے جبل رحمت کی طرف. جبل رحمت کا پہاڑ جو ہے اس جگہ پہ سب سے, جو کہ حج کے موقع پہ ایمبولینس کے طور پہ کام کرتے ہیں. 24,000 صحابہ تھے اور گروپ کی صورت میں واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نا سب ہوش میں ہے نا, نیند میں نہیں نا؟ عصر کی نماز ساتھ میں. دیکھو ابھی یہاں پہ اتریں گے, یہاں پہ اتر کے سب ایک ساتھ میں چلو. اور یہ ہے عرفات کا میدان گائز. یہاں پہ سب کا حساب کتاب ہوگا. یہ جب ہم نے دیکھے نا تو اتنے گھوس بمس آ رہے تھے ہم کو اور اتنی آنکھیں نم ہو چکی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں. تو یہ چھوٹی سی مکہ مدینہ کی زیارت گائز آپ لوگوں کے لیے. تو ایک سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا کومنٹ میں, اینڈ تک ضرور دیکھیے گا گائز یہ ولاگ. اینڈ آپ کو یہ زیارت کا ولاگ کیسا لگا گائز ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا. ڈو سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن. بہت گرمی تھی, بہت زیادہ دھوپ تھی گائز. ہم آنکھیں کھول بھی نہیں سکتے تھے, وہاں پہ اتنی دھوپ تھی. کون سا ہے؟ کون سا میدان ہے؟ عرفات کا میدان. تھوڑی دیر 1.25 نیزے کے اوپر سورج ہوگا. کتنے نیزے؟ 1.25 نیزے. 1.25 نیزہ مطلب 12 فٹ 15 فٹ, بعض لوگ بولتے 17-18 فٹ. اور زمین جو ہوگی وہ ہوں گی تانبے کی. بولا پاسبل نہیں ہے. 15 منٹ بس سے آنے کو لگے. یہ راستہ چالو رہتا تھا نا, اپن 10 منٹ میں جا کے آتا تھا. میں جاؤ بولتا تھا, میں اس کے پہلے جا کے آتا تھا. یہ راستہ چالو رہتا تھا نا, میں خود بولتا تھا جاؤ. یہ راستہ بند کرے اور اس کو انٹری پوری گھوم کے جانے کا. یہ بھی راستہ بند ہے. حرام باندھیں گے اپن راستے میں, پھر جرانا حرام پہلے باندھیں گے. وہاں بہت گردی رہتی ہے واش روم. پہاڑوں پہ بھی ہوتے ہیں, نیچے زمین پہ بھی ہوتے ہیں, اور یہاں پہ کوئی کلین نہیں ہوتی, کوئی چھت نہیں ہوتی. یہاں پہ پوری رات حجاج کرام نے بغیر چھت کے گزارنی ہوتی ہے. ساری رات یہیں پہ گزارنی ہوتی ہے. موسم چاہے جیسا ہو, گرمی ہو سردی ہو, اسی جگہ پہ گزارنا ہے. اور یہاں پہ میدان مزدلفہ میں 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ 3 نمازیں. مغرب کو عرفات سے نکلے, یہاں پہ آگے پڑھیں گے. یہ سامنے آپ کو مسجد بھی دکھائی دے رہی ہوگی. یہ مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. یہ دیکھیں جی, یہ مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. اسی میں 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ویسے یہ پورا سال بند رہتی ہے. یہ حج کے
मकानात हैं, हज की जगह हैं जो कि सिर्फ हज के लिए खुलती हैं। और जो हुज्जाज कराम कंकरियां उठाते हैं, जमरात उठाते हैं और 70 भी उठाते हैं। 49 इसमें एक जगह ऐसी है जिसको वादिये मैसर कहते हैं। क्या कहते हैं? खामोश हो गए। क्या कहते हैं? वादिये मैसर। सूरत फील है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। यहाँ पे अबरा नामी एक बादशाह था, यहाँ पे खाना काबा एक घर बना हुआ है सादा सा, और लोग उसकी इबादत कर रहे हैं। उसने कहा मैं भी एक घर बनाता हूँ और लोग उसकी भी इबादत करेंगे। लेकिन अबरा को गुस्सा आया, वहां से चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आगे हाथी वालों पे अजाब हुआ था। ये देखेंगे, ये वाली जो आपको बाहर दिखाई दे रही, ये वाली, इस जगह पे हाथी वालों पे अजाब हुआ था। अबाबिल परिंदा कितना बड़ा है, चिड़िया के बराबर परिंदा है। अगर हम उतना भी पत्थर हाथी अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, छुरी नहीं चल रही, छुरी नहीं चली। तीसरी दफा छुरी को तेज करके पत्थर पे मारा तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। छुरी चलाई, छुरी चली, लेकिन अल्लाह ताला ने दिया था। ये अपने लेफ्ट साइड की तरफ बिल्कुल सामने देखो, हम है शोय हम शोय भी दिखेगा। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो पीछे की मस्जिद। अगली हमारी ज़ियारत आ रही है, मस्जिद है, मस्जिद मीनार दिखाई देंगे बिल्कुल सामने। देखें, वो देखें, वो देखें, सबने मस्जिद देख ली, बाएं जानब देखें। उसके बाद वो सामने ब्रिज के ऊपर सफेद कलर की टेंट नुमा छतरी खड़ी है, वो सामने ब्रिज के ऊपर। ये शैतान है, ये छोटा वाला शैतान है। वो सामने ब्रिज के ऊपर देखे, 3 फ्लोर वाली ब्रिज के ऊपर देखे, सफेद कलर की जो टेंट नुमा छतरी खड़ी है, ये शैतान है, ये छोटे वाला है, ये अपने छोटे वाला दोस्त है। हमें ये खूबसूरत मंजर अल्लाह पाक हम सबको हज बैतुल्लाह के लिए कबूल फरमाए और सब हम यहाँ पे हज के रुकन अदा करें। ये देखें जी, ये मीना बस्ती, खाना बस्ती, यहाँ पे 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है। आज ज़िलहज्जा की 4 नमाजें। ये है मस्जिद ज़ोहराना गाइस। तो हम लोग को यहाँ से भी एहराम की नियत करनी थी, क्योंकि जो दूसरा उम्रा था हम यहीं से करने वाले थे। मिन हालत इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये सामने देखें जी, इस हिदायत की तरफ ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। ये है गारे हिरा, जबल नूर का पहाड़। एक दफ़ा हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारे प्यारे महबूबा का पहाड़ है। यहाँ पे आपको पूरा पहाड़ दिखाई देगा, वो देखें जी। अगली हमारी ज़ियारत है, ये हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लड़के थे। चचा कौन? हजरत अब्बास। हजरत अब्बास के बेटे थे हजरत अब्दुल्ला। ये अभी हम उन्हीं के मस्जिद पे मौजूद हैं। इन्होंने मक्का शहर छोड़ के ताइफ को आगे चुना, यहाँ पे आके दीन की दावत भी देते रहे और इनको इल्म सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और सबसे पहले जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी, मुफस्सिर कुरान, वो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। मैंने आपको गाड़ी में बताया कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का बताते हैं कि यहाँ पे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तालियाँ भी बजाई गई, सीटियाँ भी बजाई गई, ताना कशी भी की गई, यहाँ तक कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सफ़र, तकरीबन 5 किलोमीटर। आज हम में से कोई है जो 5 किलोमीटर कहे मैं चल के जाऊँगा उधर तक। अल्लाह ताला नुमा इस जगह के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु खत्म हो रही है, दाएं तरफ आपको खाली जगह दिखाई दे रही है। इस जगह पे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला नुमा आराम फरमा रहे हैं। और हमारी जो चौथी ज़ियारत है, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा, पेड़ वाली जो ये 4 दीवारी है, यहाँ पे
हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के जो पीछे से आए थे सहाबा, वो यहाँ से जो सहाबा आए थे वो यहाँ पे आराम फरमाए। चलो घर भी दिखाएंगे और मस्जिद भी दिखाएंगे। ये दीवार के अंदर जो है आपको हुआ था वो कमरा भी यहाँ से आपको दिखेगा। खड़े होके देखेंगे तो फिर नजर आएगा। ये देखें यहाँ पे थोड़े ही आगे गाड़ी जाएंगे तो आपको मुकम्मल दिखेगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये देखें, ये जो खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा है, ये बोलते हैं हज़रत सैयदना आगे ही साथ मस्जिद है, ये कदीम मस्जिद। ये देखें, ये कदीम मस्जिद। अभी जो है वो बड़ी मस्जिद बना दी गई हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नाम की। ये देखें जी, ये लेडीज़ वाली मस्जिद है। ये देखें, उल्टे हाथ की तरफ देखें, लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखें, यहाँ पे हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोशी की हालत में गिरे थे और यहाँ से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला उठा के दौड़ लगा। तारीफ का इल्म होना चाहिए, नाम रखने से कुछ नहीं होता। मस्जिद मधून, मस्जिद गुंत्रा और मस्जिद। So guys, we are going to अंगूरों के बाग। ये वही रास्ते हैं गाइस जहाँ पे हमारे नबी चलकर उनके खुद के पैरों से यहाँ आए थे। ये गलियाँ, यहाँ की खुशबू, यहाँ के बाग बहुत बेहतरीन लग रहे थे गाइस। यहाँ की रौनक, ये एक वक्त होगा जो यहीं से हमारे नबी गुज़रे होंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको इस चीज़ के लिए चुने। बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि आज हम भी यहाँ से गुज़र रहे हैं और हमारे नबी की सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। बैठो बैठो। अंगूर का बागीचा जो कहा गया ना ताइफ के वाक़े के अंदर, वो यहाँ पर था। वो क्या था? वो यहाँ पर था, वहाँ पे फ्लावर। ठीक है, अभी बात करें हो गए। आदमी कब बेहोश होता? हमको एक दिन खाना नहीं मिला, 2 दिन अब्बास के पास में वो जगह देखी, तो तीनों ने अरब की मेहमान नवाजी तो छोड़ दो। क्या छोड़ो? अरब की मेहमान नवाजी जो मशहूर है वो छोड़ दो, वो तो नहीं करे, बल्कि जलील करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करे? एक ने बोला कि अल्लाह को तुम ही मिले थे कि नबी बनाने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह। दूसरे ने बोला कि मैं झूठों से बात नहीं करता। तीसरे ने बोला तू अगर सच्चा है तो ठीक है, तेरी बात को इनकार करना खतरे से खाली रहे, अगर तू झूठा है तो मैं तेरे से बात भी नहीं करना चाहता। और ऐसा करके जलील करके निकाले, और निकाले इसके ऊपर भी बस नहीं किए। क्या किए? मोहल्ले के जो वट्टे गर्म करने वाले शरीर बच्चे लोग होते हैं ना, उनको उनके पीछे लगाए, और वो लगाने के बाद में क्या कर रहे हैं? अब जैसे नहीं है पहले होता था कि छेड़ते थे, ए मोटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका गया। यहाँ तक क्या आता रिवायतों में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए। क्या मारे गए? क्या मारे गए? पत्थर मारे गए। कैसे पत्थर मारे गए? आता रिवायतों में कि ताइफ के लोगों ने, लड़कों ने जो पत्थर मारे ना, वो एक पत्थर ऐसा जिस्म पे जाके लगता था कि कोई भी पत्थर आपके जिस्म मुबारक से खून लिए बगैर निकलता ही नहीं। क्या लिए बगैर? घर में प्याज काटो ना, प्याज काटते काटते में ये दुनिया और ये कायनात बनी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। किसकी तौबा कबूल हुई? आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। किस वाक़े पे, किस जुमले पे? कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी तौबा कबूल कर। अल्लाह ने कहा कि तुझे ये नाम कहाँ से पता चला? कहा अल्लाह मैंने तेरे अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी मैं समझ गया था जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ में जोड़ा है वो कोई मामूली नाम नहीं होगा। फरमाया आदम सुन ले, मोहम्मद वो नाम है, अगर हमें उसको बनाना ना होता तो हम तुमको, इस दुनिया को, इस कायनात को भी खून लेके निकल रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उस खून को अपने जिस्म पे मर रहे।
क्या कर रहे हैं, जिस्म पे मल रहे हैं। निकला कि कभी किसका इतना खून कि जिस्म पे मलना पड़े? ये हम में से किसी ने दीन की खातिर इतनी तकलीफ मशक्कत उठाई? यहाँ तक की रिवायतों में आता कि आपका खून आपके जूतों के अंदर जम गया, जैसे बकरा काटे बाद में खून ठंडा होने के अंदर जमता ना, खून के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म पे खून इसलिए मल रहे थे कि जहाँ पर नबी का और रसूल का खून जिस सरजमीन पे गिरता है, अल्लाह का आज़ाब आए बगैर वहाँ रहता ही नहीं। और आप बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में ज़ैद बिन हारिसा ने उठा करके आपको यहाँ पर लाए। यहाँ पर लाने के बाद में ये बात किसका था? उतबा बिन रबिया का। देखो, मेरे लिए बोलना आसान है, तुम्हारे लिए सुनना आसान है, ये सब आसान है हमारे वास्ते। क्यों आसान है? क्योंकि हम सिर्फ हो गए। वो आए, वो देख करके, अरे जो कुफ्फार था, जो इस्लाम का दुश्मन था, वो देख करके क्या कह रहा है कि ताइफ वालों, तुमने मोहम्मद का क्या हाल किया? अपने बागीचे से अंगूर तोड़े और तोड़ करके देने गया तो उसको शर्म आ गई। अब्बास को कहा कि अब्बास जा करके ये अंगूर पेश करना और कहना कि तुम्हें तुम्हारी रिश्तेदारी का वास्ता ये अंगूर कबूल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर उठाते ही खाते वक्त ने कहा बिस्मिल्लाह। क्या कहा? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जब कहा तो कहा, अब्बास ने कहा कि ये नाम, ये कलमा को यहाँ नहीं कहता। कहा तुम कहाँ से हो? कहा मैं नैनुआ से हो। अरे तुम मेरे भाई यूनुस के मुल्क से हो? कहा हाँ। तुम कैसे जानते हो? यूनुस मेरा भाई था। अब्बास ने ईमान दाखिल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता रिवायतों में सारी तकलीफ मशक्कत भूल गए। उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की कि अल्लाह तुम इनको किसके हवाले करता, जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे नहीं पहचानते। अल्लाह इन्होंने मेरे साथ में क्या हाल किया, मेरे साथ में क्या मामला किया। अल्लाह अगर तू राजी है तो मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अल्लाह अगर तू नाराज है तो मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी। और आज खिलने हो गए चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इनकी नस्लों में कोई ना कोई ईमान में दाखिल होगा। और वही हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन? कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हिंदुस्तान में दीन लेकर आने का जरिया बने, वो कहाँ से थे? ताइफ से थे। कहाँ से थे? ताइफ से। तो देखो, अभी अपना आधे के करीब अपना हो गया। क्या हो गया? आधे के करीब क्या हो गया? अपना सफ़र ख़त्म हो गया। बच्चे कुछ 7-8 दिन बचे अपने, क्यों वक्त दे। देखो, खाना तो हम घर पे भी खाते, सोते तो हम घर के साथ में बोल सकता है कि अल्लाह हमसे राजी हो गया। कौन बोल सकता? बताओ, बोल सकता? नहीं बोल सकता। पर अल्लाह ने हमको दिया ही होगा, बोल सकता कोई? ये पत्थर तो आप सबको ही पता होगा गाइस कि जब हमारे नबी पे जो जुल्म हुआ था, तो ये पत्थर वही रुका हुआ है हवा में। आप देख सकते हो। ये सामने देखे, ये सामने आपको मस्जिद और इसको मस्जिद रसूल भी कहते हैं। का मतलब है टेक लगाना। यहाँ पे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाई थी, यहाँ पे आराम किया था। और ये बिल्कुल ही एक लेफ्ट वाली बार है। ये देखिए कितनी तकलीफ़ उठाए है हमारे नबी ने सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत के लिए। इतनी सारी चीज़ें तो पता ही थी, बट और यहाँ पे आने के बाद और ज़्यादा मालूमात हो गई हमको। बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के, और समझ भी आई बहुत सारी चीज़ें हमको। Hi guys, अस्सलाम वालेकुम। So we are visiting Aisha Masjid. We have to reach just now. आप देख सकते हो गाइस, उम्रा करने के लिए कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। नैन्सी, आप भी मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम देखोगे गाइस आयशा मस्जिद, द मदर ऑफ बिलीवर्स आयशा मॉस्क्यू। सी गाइस, बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। So we have to enter now. That is prayer area man. अच्छा,
ठंडा कितना सुकून लग रहा है ना। आ रहे वजू करने में। और यहाँ पे बैठी है ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। सो यहाँ पे अल तवक्कल टूर्स एंड टूरिज़म में आप देख सकते हो यहाँ पे बना है चिकन चिल्ली, वेज भी है, दाल राइस एंड सम पानी पूरी। वाओ गाइस, इट वाज वेरी डिलीशियस एंड वेरी नाइस। एंड यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स भी है। सो आप लोग भी जल्दी जल्दी इनको DM कीजिए। एंड हमारे जो भाई हैं हाफिज़ अशरफ पटेल, उनको भी जल्दी जल्दी DM कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वाओ गाइस, लुक एट दिस पानी पूरी। एंड ये तो सबको ही पता है गाइस, जो हमारे नबी थे उनके ऊपर डस्ट कचरा वगैरह फेंकते थे वो जो औरत थे। यहाँ पे भी लाइब्रेरी बनी है गाइस, तो वो क्लिप भी मैंने आपसे शेयर की। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।